everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 1 of oxidation and reduction. In this class, we will be learning the meaning of oxidation and reduction, followed by the meaning of a redox reaction. And in the ending of the video, we will be learning that how to find the oxidation number of a given atom in a given compound. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yes. So this is oxidation and reduction class number 1. Oxidation reduction की बात करें तो it's a very simple concept because we have already learned in our junior classes. Oxidation मतलब addition of oxygen to a substance. For example, जैसे magnesium है, magnesium में अगर हम oxygen add करते हैं, then it becomes MgO, that is magnesium oxide. If we talk about the reduction, reduction बिल्कुल इसका opposite है, that is removal of oxygen from a substance. For example, HgO है, तो अगर इसमें से हम ऑक्सीजन रिमूव करवा देते हैं देन वी गेट 2Hg plus O2. So what is happening over here? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि मैग्नीशियम की हुई है ऑक्सीडेशन. HgO मर्करी के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकला है, so that is why we are saying reduction. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप इतना याद कर लेते हैं that addition of oxygen is called oxidation. इतनी बात याद करने से आप ये और ये दोनों भी आराम से सीख जाओगे, बिकॉज यू नो इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन. और अगर ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन है तो यहाँ उल्टा होगा हाइड्रोजन के केस में, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और इधर रिडक्शन तो आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन के बिल्कुल उल्टा चलता है. सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. फाइन. सो वी विल बी सीइंग द एग्जांपल्स. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा वैसे अभी हम देखेंगे किसी केस में, अभी हम देखेंगे रिडक्शन के केस में. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि आपके पास है 2H2S plus O2. ये क्या फॉर्म कर रहा है? सल्फर प्लस H2O. तो वी आर सीइंग ओवर हियर कि यहाँ पे H2S, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है टू फॉर्म सल्फर. इट मीन्स दैट देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance. So that's why this process is called oxidation. Similarly, if we check out this addition of hydrogen, now you can see that we are having chlorine over here and here the hydrogen is being added and we are getting HCl. So it means that क्लोरीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? HCl. So it is an example of reduction. ये हमारे पास एलिमेंट्स हमने लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में. Now, if we talk about the concept of oxidation and reduction in terms of electronic concept, how we will be saying? We will be saying loss of electron from any species is termed as oxidation. For example, if we are having Na, so Na में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, it will form unique positive ion, that is Na positive. इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इट मींस दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिमिलरली, if we see Sp3 positive is gaining an electron, if any ion is gaining an electron, then we will be saying that this is reduction. Clear that? So this is gain of electron by any species is called reduction. So we are having the three concepts to define the oxidation and reduction. First one is addition of oxygen is called oxidation. Removal of hydrogen is called an oxidation process. Loss of electron is called oxidation process. और सब उल्टा कर दो, you will be getting to know about the reduction. Now, ये सब चीजें जानने के बाद हमें क्या देखना है? यहाँ पे मैंने और एग्जांपल्स भी दे रखी है. फॉर एग्जांपल सल्फर, यहाँ पे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं then we are getting S2 negative. And here we are seeing that S2 negative is losing the electron. Since it is losing the electrons, that's why we are saying that this is the example of oxidation. Oxidation अलग से पढ़ा, reduction अलग से पढ़ा. Now, what do you mean by redox reaction? What do you mean by redox reaction? Redox has come from the combination of two words, that is reduction, and the second one is oxidation. So any reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously is known as redox reaction. Redox reaction में
एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम इनको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सो द सब्सटेंसेस which oxidizes others, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे but itself gets reduced is called oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। If we talk about the reducing, then the substances which reduces others and gets oxidized is known as reducing agent. Clear that? Now, let us see the examples and understand this concept in detail. For example, it's very, very easy. See, CuO, ये oxygen remove कर रहा है. Removal of oxygen is called reduction. Clear that? Removal of oxygen is called reduction. तो जो खुद reduce हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे की क्या करवा रहा होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाने वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। वैसे ही CuO खुद क्या हुआ है? ये खुद हुआ है रिड्यूस। वैसे ही अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हैज गेन्ड द ऑक्सीजन, तो मतलब इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। और खुद अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो दूसरे की क्या करवा रहा होगा? रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। क्लियर दैट? ओके, now let us move to the next example. It's very similar to the above one. For example, we can see that H2S. Can you see H2S? Now can you see that here is a removal of hydrogen? Yeah. So here is a removal of hydrogen. So we can say that here we are seeing that here oxidation has occurred. क्या हुआ है? Oxidation. और क्लोरीन में क्या हुआ है? Addition of hydrogen. तो यहाँ पे क्या हुई है? Reduction. ठीक है, एक तो ये हमें समझ आ गया। ऊपर वाली प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करती हुई है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि H2S खुद हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है अपने आप ही, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या करवा रहा है? रिड्यूस। So that's why it is acting as reducing agent or reductant. Now, if we see this is chlorine and chlorine is getting the hydrogen, it is gaining the hydrogen. तो मतलब इसकी हो रही है reduction. So here we will be writing that Cl2 is getting reduced and जो species खुद reduce हो रही है वो दूसरे को क्या करवा रही होगी? Oxidize. So here it is acting as oxidizing agent. Clear? Okay. Next, are we having some other examples? Yes, we are having. Here you will be getting to know about the electronic concept where we talk that loss of electrons is termed as oxidation and gain of electrons is called reduction. यहाँ पे अगर हम देखें Na is in +1 state and oxygen is in -2 state. Do you know how am I doing this? You know this? that यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बनता है क्रिस क्रॉस, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की -2, ठीक है, और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन सोडियम के ऊपर 0 है, तो 0 से +1 जा रहा है, यानी कि इसने पक्का ही इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तभी ये +1 में गया, तो यानी इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। O2 यहाँ पे 0 है, ये 0 से गया है -2 में, यानी कि ऑक्सीजन ने किए हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके ही ये O2 नेगेटिव बना, यानी यहाँ क्या हुई है? रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सो इट हैज ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एंड आल्सो ये क्या एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। And if we talk about oxygen, oxygen has gained the electrons, means it has reduced itself. That's why we'll be saying that this is acting as an oxidizing agent. Fine. So these terms need to be taken care if we are dealing with such chapter.
अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द चार्ज विच एन एटम appears to have when all the other atoms are removed from it as ions. क्या चार्ज होगा एक एटम के ऊपर अगर उसे साथ वाले एटम्स को रिमूव करवा दिया जाए? तो वी आर गोइंग टू सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सल्फर की ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाऊंगी बहुत सारे एग्जांपल्स में। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन्स एंड एक हाइड्रोजन के ऊपर +1। सल्फर को मान लीजिए x और ओवरऑल न्यूट्रल है, so you will be getting +2 plus x is equal to 0, यानी x is equal to -2। Here we are seeing यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 into +1 और सल्फर के ऊपर x, 3 हमारे पास ऑक्सीजन है, 3 into -2 is equal to 0, +2 plus x minus 6 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4। SO4 टू नेगेटिव की बात करें तो सल्फर का x और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ओवरऑल चार्ज -2, x minus 8 is equal to -2, x is equal to +6। If we talk about Na2H2O3 तो हमारे पास 2 सोडियम है, 2 into +1, 2 सल्फर है और 3 हमारे पास ऑक्सीजन है, so we will be getting +2 plus 2x minus 6 is equal to 0। Then after calculation we will be getting x is equal to +2। क्लियर? आगे देखते हैं। S2O7 2 negative. Are you people able to see S2O7 2 negative? Yeah. So let us see. अगर आपके पास 2 सल्फर है तो 2x, 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और ओवरऑल चार्ज -2। So 2x minus 14 is equal to -2, 2x is equal to 12, x is equal to +6। Here 2 into +1 plus x plus 4 into -2 is equal to 0, +2 plus x minus 8 is equal to 0, x minus 6 is equal to 0, x is equal to +6। S2O4 2 negative. What's so difficult in this? Nothing is difficult over here. Are you people able to see? Are you people able to see? 2x minus 8 is equal to -2, 2x is equal to 6, x is equal to 3। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, you need to see कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना पॉसिबल है भी कि नहीं। क्यों बोल रही हूँ मैं? देखो, अगर आपका सल्फर का यहाँ पे +8 आ जाता, डू यू थिंक कि +8 आ सकता है कभी सल्फर पे? नो, नेवर। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो 8 कैसे आ जाएगा? ठीक है ना? तो उस केस में आपको बहुत विजिलेंट हो जाना है। कैसे विजिलेंट होना है, दैट आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू। ओके ओके, सो अब जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, दीज आर समवट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल Fe in Fe3O4, यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिए जरा फाइंड आउट कैसे आएगा Fe in Fe3O4। हाँ जी, लेट मी सॉल्व। यहाँ पे ना, जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ, 3 एग्जांपल्स देने वाली हूँ। Fe in Fe3O4, S in Na2S4O6, Pb in Pb3O4। You will see something different। ठीक है, आप F आयरन का X ले लीजिए and then you are having 4 into -2 is equal to 0, 3x minus 8 is equal to 0, 3x is equal to 8, x is equal to 8/3, which will be equal to 2.67। फाइन। तो क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्रैक्शन में शेयर हो सकते हैं? नो, नेवर, है ना? तो 2.67 आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा शो कर रहा है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज वी आर हैविंग iron in 2 types of oxidation states. One is Fe2 positive, another one is Fe3 positive. So we have taken the average, that is 2.67. Fine. Similarly, if we see in Na2S4O6, the oxidation number of sulfur is, यहाँ पे हमारे पास 6 into -2 is equal to 0, +2 plus 4x minus 12 is equal to 0, 4x minus 10 is equal to 0, x is equal to 10/4, which will be equal to 2.5. Again, it is a fractional oxidation number, which just implies that it is an average oxidation number। ठीक है, ये क्या है? कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स का मिलाप है, कुछ सुमेल है। So now Pb in Pb3O4, so हमारे पास 3 Pb है, 4 into -2 is equal to 0, 3x minus 8 is equal to 0, x is equal to 8/3, which will give us 2.67। Again, it is an indication of the average oxidation number।
So now the main questions are H2SO5 per oxo monosulfuric acid. If we find out, you need to know this acid by its name, Carus acid or peroxo monosulfuric acid. If you remember the name, only then you will be able to solve this question. क्योंकि अगर आप normally करो H2SO5, तो 2 into plus 1 plus x plus 5 into minus 2 is equal to 0 plus 2 plus x minus 10 is equal to 0. You will be getting x is equal to plus 8, which is practically impossible. Sulfur के ऊपर plus 8 कभी नहीं आ सकता, means there is some mistake. And वो mistake हमें कैसे पता चली? इसके नाम से, पर ऑक्सो लिंकेज थी. कैसे थी? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास एक OH और यहाँ पे आपके पास एक पर ऑक्सो लिंकेज. पर ऑक्सो लिंकेज की वजह से यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे अगर आप -2 यहाँ पे +1 लेते हो, इसका -2 इसका -2. नाउ एड देम अप, you will be getting क्या गेटिंग? आओ देखते हैं. ओके, 1 minus 2 is -1, -1 minus 2 -3, -3 minus 2 -5, -5 minus 6 -7, -7 और +6, ये आ गया +6. तो आपके पास यहाँ पे क्या है? -6 plus x और इक्वल्स टू 0, यानी x is equal to 6. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए. मैंने सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को कर दिया है प्लस. परऑक्सो में -1 होता है ऑक्सीजन के ऊपर, नॉर्मली ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है. अब हम CrO5 की बात करते हैं. CrO5 से पहले मैं ना आपको एक करवा देती हूँ, मैंने यहाँ पे नोट नहीं करा. H2OH2 नेगेटिव, ठीक है, H2OH2 नेगेटिव का भी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी, बट यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर. H2O8 में एक्चुअल में आपस में लिंकेज इस तरीके से होती है, जैसे H2SO4 में देखी, ऐसे यहाँ पे आपको H2O8 नेगेटिव की 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर याद करनी है. और यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि दिस इज -2, दिस इज -2, -1 -1 -2 -2. ओके, सो नाउ यू आर हैविंग 2 सल्फर 2x, और कितनी ऑक्सीजन के ऊपर -2 है? 4 ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास कितना है? -2 है ना. और ये जो आपके पास एंड वाली ऑक्सीजन है, क्योंकि ये नॉर्मल पड़ी हुई है, तो इसका चार्ज नहीं कंसीडर करना, इसको भी अपने -2 ही मानना. ठीक है, इसको भी -2 मानना है. तो ओवरऑल 6 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 है. टेक इट एज 0. 2x plus 12 minus 2 is equal to 0. 2x minus plus 12. ओके ओके, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. यहाँ पे चार्ज जो है, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, है ना, यहाँ पे प्लस आएगा. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग यार, मतलब क्या ही हो रहा है. ओके, सो 2x minus 12 minus 2 is equal to 0. Again I have committed some mistake. क्या मिस्टेक कमिट की है बता दीजिए भाई, क्या गलती की है मेरे यहाँ पे? +2 into -1. ओके, नाइस नाइस, अब आ गया समझ. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. दैट वाज व्हाई आई वाज थिंकिंग क्या हो रहा है. हाँ, देखो यहाँ पे जो -2 वाले हैं आपके पास, ये 1 2 3 और 4, ये आपके पास क्या है? -2 वाले. 2 सल्फर है, 2x आ गया. 4 आपके पास -2 वाले. अब 4 ही आपके पास -1 वाले हैं. मैंने तो बोल दिया था, बट मेरे को अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कुछ गड़बड़ हो रही है. सो वो निकली सही, देखो ध्यान से. ठीक है, तो अब ना आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 4 into -2 यानी -8, 4 into -1 यानी -4 equals to 0. तो 2x minus 12 is equal to 0, x is equal to +6, which is feasible for sulfur. Okay, now let's see CrO5. CrO5 में क्या है? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी इस तरीके से लगी हुई. तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पे -1 -1 -1 -1. तो क्रोमियम का अगर हमने x मान लिया है, तो 4 हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -1 है और 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है. तो x is equal to +6, which is practically possible as well. क्योंकि 3d5 4s 1 कॉन्फ़िगरेशन होती है
क्रोमियम की, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम CaOCl2 की बात करते हैं, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 इज समवॉट ट्रिकियर। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ऐसे लगता है कि CaOCl2 में दोनों के दोनों क्लोरीन सेम है, बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो हैं वो अलग हैं। एक में OCl नेगेटिव के तौर पे ये एग्जिस्ट करता है और एक में Cl नेगेटिव। OCl नेगेटिव में हम ये क्या देखते हैं कि ये क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज होता है और Cl नेगेटिव में होता है -1। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करें, कैल्शियम को मानो X और ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 2 क्लोरीन का अगर आप नॉर्मल भी ले रहे हैं, नॉर्मल भी ले रहे हो, यू डोंट नो हाउ इज इट कमिंग बट यू आर टेकिंग एज अ नॉर्मल। ठीक है, तो X-2 और आपको पता है कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ जी, CaOCl2 में व्हाट एम आई सेइंग स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो X-2 इज इक्वल टू 0, X-4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। नाउ वी नो वेरी वेल कि कैल्शियम के ऊपर +4 चार्ज नहीं आ सकता, मतलब ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो उसके बाद हमें इसकी स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ेगा कि OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव होता है। OCl नेगेटिव में क्लोरीन के ऊपर +1 है, Cl नेगेटिव के ऊपर -1 है। तो ओवरऑल अगर आपसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो +1 -1 इज इक्वल टू 0, आप 0 रिपोर्ट करोगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। क्लियर? ओके, चलो आगे। आगे है हमारे पास C3O2 दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, तो 3 कार्बन है तो 3x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3। तो कार्बन सब ऑक्साइड में आपके पास 4/3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर आई डेफिनेटली ड्रॉ इट। यू कैन सी सेंटर वाले कार्बन के आसपास तो दोनों कार्बन है, तो इसके लिए इसका 0 हो गया। इसके अराउंड ये क्योंकि -2 है तो इस वाले कार्बन के ऊपर +2, इस वाले के ऊपर +2 आएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर है -2। तो कोरेस्पॉन्डिंग को देख के हमें देखना होता है। ठीक है, अगर आप इनका कॉमन निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो एवरेज क्या होता है, तीनों एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल आपके पास 4 हुआ और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे 3, सो 4/3 इज एग्जैक्टली justified. Now we are going to see Br3O8, that is tribromo octaoxide. So you can just write in Br and Br, and you need 3 oxygens over here and 3 oxygens over here. Then यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3x प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3x minus 16 is equal to 0, 3x is equal to 16, यानी x is equal to 16/3. Okay, so this is the required thing. If you want to check out that how is it coming, you can just justify। 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो इसके ऊपर +4 आ रहा होगा, 3 ऑक्सीजन लगे हैं तो इसके ऊपर +6, यहाँ पे भी +6 + 6 12, 12 plus 4 is 16 divided by total number of bromine atoms, that is 3. So 16/3 is the right answer. Now S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव को कैसे समझेंगे, यहाँ पे 4x और 6 है आपके पास ऑक्सीजन, तो 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 4x minus 12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 5/2। If you want to calculate that how is it coming, I'll just say, यहाँ पे मैंने आपकी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ की, बट आई कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दैट, सल्फर 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 एंड सल्फर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑक्सीजन डलवाइए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव, बीच वाली सल्फर के ऊपर 0 0 और यहाँ पे -2 -2 -1, यानी यहाँ पे आ गया +5, यहाँ पे -2 -2 -1, यहाँ पे भी क्या आया +5। ठीक है, तो 10 चार्ज 4 सल्फर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज 5/2। ओके, इज देयर एनी अदर एग्जांपल? या, दिस इज HNO। HNO4, you need to remember the name peroxynitric acid. You need to know peroxynitric acid. If we normally find out the oxidation state, hydrogen की +1,
n को x मानते हैं और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू +7 विच इज नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू नो कि इसका नाम पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड है, तो मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास एक लिंकेज OO वाली भी होगी। दो, एक पे -1 और 2 ऑक्सीजन आपके पास होंगी -2 -2 1, क्योंकि टोटल 4 है ना, तो पेरोक्सी लिंकेज एक ही होगी। तो हाइड्रोजन के लिए +1 आया, नाइट्रोजन के लिए +x लिया, 2 ऑक्सीजन के ऊपर पेरोक्सी लिंकेज होने की वजह से -1, 2 ऑक्सीजन आपकी नॉर्मल है तो 2 × -2, तो +1 +x -2 -4 इज इक्वल टू 0, -6 +1 यानी कि x इज इक्वल टू +5। So you need to remember that HNO4 is peroxynitric acid. That's why we are having x is equal to 5 over here. ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। कुछ स्ट्रक्चर्स जो मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। So this is all about today's video. See you in the next video. Bye bye. Take care.